I got my visa in just 1 month. So जो दूसरे मेरे साथ थे उन्होंने मेरे साथ ही वीजा अप्लाई किया था। कुछ लोगों को मेरे से पहले इनविटेशन आई थी दिसंबर में, तो जो कि अभी तक वेट कर रहे हैं। मेरा जो है उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3 साल का, तो उसमें उन्होंने मुझे 3 ईयर की अकोमोडेशन दी है फ्री। उसमें वो मेरा सारा कवर करेंगे, मेरे बिल्स वगैरह जितने भी होंगे। So hi everyone, welcome to you all in my another video and today with us very special guest Ahmed with us. तो अगर आपने इनका प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि he passed his CAPS exam from academically. Now he is living in working in Australia. He is doing as a pharmacy intern. He is working currently. तो बहुत सारे लोग गाइस आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट कि वीजा नहीं मिल रही है, कितना टाइम लग रहा है, या जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, और सैलरी कितनी होती है, और बेसिकली फार्मेसी इंटर्नशिप में रोल क्या होता है, एक ओवरसीज फार्मासिस्ट कैसे काम करते हैं ना। तो बहुत सारे जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो आज हम जो है अहमद से पूछेंगे। तो हाय अहमद, वेलकम टू यू अगेन इन एकेडमिकली दिस एपिसोड। Yeah, hello. Thank you so much. Ahmad, can if you can just give us your brief introduction again. Yeah, but I just told you before in the previous interview. So I'm basically from Pakistan, and I did my pharmacy degree from University of Punjab. So my college was affiliated from the University of Punjab, that was Akhtar Said Medical College. So I did my preparation in November with the Dr. Akram academically, and I passed the November CAPS exam. Then I have applied for the visa in January. Then I got the 491 visa, which is a PR visa. Yes. So Ahmad, basically, have you had some work experience previously in Pakistan? Have you working as a pharmacist, or is what is zero experience? Yeah. I have 3 year work experience in Pakistan as a retail pharmacist. So I have 3 year work. Yeah. So basically, before you appear in the exam, you was working as a pharmacist, or simultaneously you prepare for CAPS exam, right? Yeah. Because I mean, if you can give us just some brief about this work. Basically, if we compare with the Indian and Pakistani pharmacies, we can compare with Australian standard. A lot of Yeah. difference basically. तो दोनों में basically work difference क्या है? पाकिस्तान में as a pharmacist आपने काम किया, now you are working in Australia. The pharmacies in Pakistan, like the process is the same like the dispensing, but the way in Pakistan or India is different from here in Australia. So here all the focus is on the patient situated, or like patient oriented work. So Basically, clinical work we can say, you have to counsel the patient, So like this is like a patient-oriented job basically the pharmacy. In India, yeah, Pakistan, you are just selling the medicine basically, right? या पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादातर जो है वो आप जो ये होता है कि आप मेडिसिन सेल कर रहे हो और बिजनेस ओरिएंटेड सारा काम होता है। Yes, yes, yes. लेकिन जो इधर है, इधर जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो बिजनेस तो होता ही है, लेकिन सबसे पहले पेशेंट की हेल्थ होती है, क्योंकि जो इधर जितनी भी फार्मेसीज हैं वो गवर्नमेंट से अटैच होती हैं। वो उनको गवर्नमेंट ही रन कर रही होती है, जो पीबीएस है, नॉन पीबीएस है। उसके बाद जो जितना भी सिस्टम है उनका, सेफ्टी नेट है, उनका कंसेशन कार्ड है, वो सारा गवर्नमेंट ही रन कर रही होती है। पाकिस्तान में जितना मैंने काम किया है वो ये होता है, वो गवर्नमेंट का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। ये पास से पे करता है हमारे वहाँ पेशेंट जो होता है जनरली। या बिल्कुल। यस। तो अहमद, ये बताइए, जब आपने कैप्स पास किया, बेसिकली कैप्स की, बेसिकली आई एम नॉट आस्किंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग कैप्स बिकॉज हमने इनके प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसका हमने लिंक भी डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो आपको उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। कैप्स के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। अब हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। कैप्स के बाद जब आपने अप्लाई किया तो कितना टाइम लग गया था उन्होंने बेसिकली आपको इन्विटेशन मिलने में, ये 491 वीजा और फिर ग्रांट होने में? आपने जनवरी में अप्लाई किया। Actually, I was very lucky that I got my visa in just 1 month. So जो दूसरे मेरे साथ थे उन्होंने मेरे साथ ही वीजा अप्लाई किया था। कुछ लोगों को मेरे से पहले इनविटेशन आई थी दिसंबर में, तो जो कि अभी तक वेट कर रहे हैं। तो आई गॉट माई वीजा इन जस्ट 1 मंथ। और जो इनविटेशन था, मतलब कि इनविटेशन और मेरी जो वीजा ग्रांट थी,
वो 1.5 मंथ में सारा मेरा प्रोसेस हुआ था, और जो मैं कि क्या बताऊँ, सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम जो प्रोसेस है। मैं भी हालांकि बेसिकली जब मैंने बोलता हूँ इन लोगों के 1 मंथ टू लेके एटलीस्ट 3 मंथ तो लग ही जाते हैं ऑन एवरेज बेसिकली। मिनिमम तो ये 45 डेज बहुत ही मिनिमम ही इज राइट, बिकॉज बहुत सारे लोग 3 3 महीने से ज्यादा से वेट कर रहे हैं ग्रांट के लिए, है ना। पर ऑन एन एवरेज बेसिकली अगर आपने एग्जाम पास किया कैप, तो आपको वीजा तो मिलना ही है। जस्ट टाइम लग सकता है, मगर वीजा आपको मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर वैकेंसीज हैं अभी अवेलेबल हैं, जॉब्स यहाँ पर गवर्नमेंट वीजा दे रही है। पर एक क्वेश्चन ये था कि अहमद ने में से क्वेश्चन किया, मुझे पर्सनली याद है कि सर यहाँ तो वीजा 491 36 महीने की वेटिंग चल रही है। तो ये क्या ये ट्रू है? नहीं तो अब अहमद ने ये मेरे से क्वेश्चन किया था, अभी ये खुद ही आ गए हैं 45 डेज में। तभी मैंने इनको कहा था ये डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है, राइट। अहमद को ये बात बताओगे, आपको याद है आपने मुझसे क्वेश्चन जी किया था? बिल्कुल बिल्कुल, आई हैव आस्क्ड यू बिफोर। यस, I was very in tense condition. I just call you at that time that यस, यस, यस। like तो एक्चुअली बहुत सारी 36 जो महीने लग रहे इंटरनेट हैं। पे जो इन्फॉर्मेशन तो होती है वो करेक्ट नहीं होती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल वो करेक्ट थी, क्योंकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे थी। लेकिन वो सारों के लिए नहीं होती। वो अगर ऑक्यूपेशन वाइज बेसिकली बोल सकते। ऑक्यूपेशन वाइज डिपेंड करता है, क्योंकि फार्मासिस्ट उनको चाहिए इस टाइम। यस। दे नीड द फार्मासिस्ट, सो दैट्स वाई उनका जो प्रोसेस टाइम है वो 1 से 2 महीने हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है अहमद, जब आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ गए थे, हाउ यू स्टार्ट जॉब सर्चिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड हाउ मच टाइम इट टेक टू स्टार्ट लाइक फर्स्ट इंटरव्यू एंड क्रैक दिस जॉब? Actually, I have searched for my job on Indeed and Seek Job. I got job within 1 month. So there was an interview with the employer. So I just got my job in just 1 month. देखो, अहमद को वीजा मिला 45 डेज में, और जब ये यहाँ पे लैंड करे, एक्चुअली इनको वीजा ग्रांट हो गई थी पहले, और ये खुद से लेट आए थे बिकॉज देयर वाज ईद थी और कुछ फैमिली का इनका वो था। और फिर इसके बाद में जब ये यहाँ आ गए थे ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, तो इनको 30 डेज के, मुझे था इनको 3 वीक में जॉब मिल गई थी, मुझे पर्सनली याद है जब उन्होंने मुझे बताया था। तो इन्होंने इनको जॉब, अच्छा ये बताइए जॉब इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन करता है बेसिकली जॉब इंटरव्यू में, अगर कुछ आपको कुछ थोड़ा याद हो तो? आप डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए करते हो तो वो आपसे क्लिनिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। अच्छा। तो उसमें केस नैरेज क्वेश्चन होते हैं। अगर आप रिटेल के लिए कर रहे हो तो उसमें ज़्यादातर आपका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होता है उस बारे में पूछते हैं, और आपका रिलेशन पूछते हैं, जो आपका जो स्टाफ के साथ कैसा रिलेशन था, आप उनको किस तरह डील करते थे। और कुछ आपका डिग्री के बारे में पूछ लेते हैं कि कहाँ से की है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता इंटरव्यू। मतलब बिहेवियरल टाइप क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, है ना, कि आप कलीग से कैसे बात करते हो, पेशेंट को कैसे डील करोगे आप, है ना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट या ना कुछ कुछ इशू था फार्मेसी में, फॉर एग्जांपल आपने कैसे रिजॉल्व किया, फॉर एग्जांपल आपकी किसी लड़ाई हो गई आपके कलीग के साथ में, है ना। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, पर इन जनरल बहुत ज्यादा कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि आपको पता नहीं होगी और आप आंसर नहीं कर पाओगे। यस, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो क्लिनिकल ओरिएंटेड थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई कोई केस दे सकता है, वहां पूछ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा हम्म। अहमद, जब आपको ये जॉब लग, आई मीन ऑन एन एवरेज फार्मासिस्ट की इंटर्न की सैलरी कितनी होती है? आई मीन ऑन एवरेज, आई मीन आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। Yes, yes. On an average, I think there is about like 26 to 29 dollars per hour. On an average, यही है। मतलब ये ना अराउंड $30 इसके Yeah. आसपास डॉलर पर आवर आपको सैलरी मिलती है इंटर्नशिप व्हेन यू आर डूइंग, राइट। एंड अहमद इज वेरी वेरी लकी बेसिकली, आई नेवर मेट बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट फ्रॉम academically the path they are working differently, but Ahmed give me very specific information that his employer give him 3 years फ्री एकोमोडेशन। ये क्या है अहमद, ये आपको मिला है? आप क्या 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 है इसके अंदर, मतलब क्या क्या पैकेज में आपके क्या है ये? मेरा जो है उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3 साल का। तो उसमें उन्होंने मुझे 3 ईयर की अकोमोडेशन दी है फ्री। उसमें वो मेरा सारा कवर करेंगे, मेरे बिल्स वगैरह जितने भी होंगे, क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इंटरनेट का बिल, लाइट का बिल भी देंगे वो? बिल्कुल। ओए बिल्कुल। वाह, दिस इज एक्सीलेंट बेसिकली। मैं तो अपने घर का मुझे लगता है 3,000 से ज्यादा का मैं बिल ही पे करता हूँ, आई मीन इंक्लूडिंग द रेंट। ठीक है। So I'm just feeling I'm very lucky. Like no one get these like
accommodation or the यस, bills मैं भी like किसी को that. नहीं जानता, क्योंकि Yeah. हमारे यहाँ से बहुत बच्चों ने पास किया, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं, किसी को मिला भी था तो इनिशियली 6 मंथ को दिया, किसी को 1 साल को दिया, मगर 3 साल को जो है अहमद को दिया है। और तो अहमद, आप कितने आवर काम करते हो बेसिकली, मतलब एज एज इंटर्न में कितने आवर आप काम कर सकते हो? Actually, I can work about 42 hours, 42, 38, 40, 42 hours. So और इन basically, मोर on देन an दैट average, 40, मोर देन दैट 40 आवर कैन नॉट वर्क? yeah, we can work, but the employer will not like allow you to work because it is not good for him. हाँ। So as a pharmacist, you can work more than 42 hours, but as an internal pharmacist, so it is not like suitable for him financially. So I can work more on weekends if I want, if I get another job on another pharmacy. So if I want to increase my practice hours, so I can work on weekends. ओके ओके, तो मतलब 40 घंटे आप वीकली 40 आवर्स अराउंड यू Yeah. कैन वर्क बेसिकली इजीली एज ए फार्मेसी इंटर्न। इफ यू वांट टू अर्न मोर, यू कैन डू एनी अदर जॉब और एनी अदर फार्मेसी और लाइक ऑन वीकेंड, सो यू कैन अर्न more money Yeah. basically. Okay, Yeah. Ahmed, I mean, if you can just give, basically, what is the role of pharmacy intern in Australia? So, like, day-to-day activities, what you have to do basically in this job? Actually, if I will explain as an internal pharmacist job, so it is like to learn each and everything. It is not like you are just learning for as a pharmacist, but you have to learn each and everything. Like it is just not like a dispensing. So you have to deal with the customers. You have to do with the Webster packing at the back, and you have to deal with the PBS. So you have to ring the doctor if there is any like wrong with the script. So there is not one thing I'm doing right now. So I'm just dealing with the I'm dispensing, like making the Webster's pack. I'm also dealing with the patient in over the counter product. So as an internal pharmacist, uh, it is like good for you that you learn each and everything, so it will be helpful for you for the next time. ओके ओके, दिस इज बहुत सारी चीजें आपको लर्न करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू आल्सो नीड टू एनरोल इन एनी कोर्स आल्सो इन इंटर्नशिप, राइट? एनी Yeah. Yeah. यूनिवर्सिटी और Yeah. लाइक फार्मेसी गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया? Yes, there are two courses. One is PSA and other one is guild. So basically इसमें इसमें दो courses है, guild और PSA के. तो जो ज्यादातर लोग वो गिल्ड ही प्रेफर करते हैं, तो इजी क्योंकि रहता है, मेरे सस्ता होता है, सिंपल सी बात बताओ। यस। नहीं, असल में जो मेरा ओनर था उन्होंने मुझे गिल्ड ही प्रेफर किया था, क्योंकि वो गिल्ड का खुद भी मेंबर है। तो क्योंकि मेरा जो फार्मासिस्ट है और मैं जिन जिन को मैं जानता हूँ सारों ने गिल्ड ही ज्वाइन किया हुआ है। तो क्योंकि बताओ जो ना, ऐसे क्या बोलते पीएसए हैं, है, थोड़ा सा गिल्ड ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सस्ता भी होता है और इजी भी हम्म, रहता है उनका, ये भी एक रीजन। हाँ ये भी है, इजी भी है, क्योंकि पीएसए का वो उन्होंने कुछ बताया था कि जो वो हॉस्पिटल लाइन की तरफ ज्यादा होता है, हम्म। क्लिनिकल वर्क उसमें ज्यादा होता है। तो गिल्ड मैंने अभी तो गिल्ड ही ज्वाइन किया हुआ है। जो 9th मंथ कोर्स होता है उसमें अपने डिफरेंट असाइनमेंट होती हैं, वो अपने पूरी करनी होती है, और डिस्पेंसिंग करनी होती है। जो आपका प्रिसेप्टर है, जो आपका फार्मासिस्ट है, वो आपको नोट करता है 9 मंथ तक, फिर उसको एंड में आके सबमिट करवाता है। ये सारा प्रोसेस होता है। और इसके बाद में कोई इज देयर एनीथिंग, कि अभी तो आप अहमद ने गाड़ी ले लिया, एंजॉय करते सैटरडे संडे, 5 दिन जॉब करते हैं ये। राइट। तो अभी जो रीजनल एरिया, अच्छा, एक बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर, ये रीजनल एरिया में के लोग एंजॉय कैसे करते हैं, वहाँ पर क्या लाइफ होती है, मतलब आपको कैसा लगता है? ये बताओ जरा। नहीं, असल में जब मैंने भी इधर आना था, तो मतलब मैंने भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन ली हुई थी, रीजनल में लाइफ बहुत बोरिंग होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं किस तरह लाइफ गुजरेगी। लेकिन रीजनल इनके उस तरह नहीं है जैसे हमारे ये पाकिस्तान के मैं वही अंदर। बोल, जैसे जो हमारे यहाँ गाँव में तो लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इवन जो ना इंटरनेट नहीं है। मेरे अपना घर बेसिकली एक छोटा शहर है, बेसिकली सिटी है, इज नॉट, गाँव नहीं है। वहां पर भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का। मैं अभी 1.5 महीने रह गया इंडिया में, इतना प्रॉब्लम था वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का और इंटरनेट का। तो यहाँ पर
छोटा सा भी अगर गांव है तो वहां आपको फुल फैसिलिटीज मिलेगी। क्यों अहमद? बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह इसी का नाम है तो ऑस्ट्रेलिया है। यस यस। कि आपका आपके जो अब जो फैसिलिटीज आपको एक मेलबर्न दे रहा है या सिडनी दे रहा है, वही फैसिलिटीज आपको रीजन में भी मिलेंगी। यस। बस बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल का डिफरेंस होता है, इधर उधर चीज़ें आपको महंगी मिलती हैं। हम्म। उधर जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इधर जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो अकोमोडेशन है आपकी, आपकी जो ट्रैवल है, वो सब कुछ सस्ता पड़ता है आपको, बहुत चीप है। एक्चुअली मैं ये हर बच्चे को बोलता हूँ, मैंने अहमद को ये पर्सनली बोला था कि रीजनल में आने का एडवांटेज क्या है किसी भी न्यू माइग्रेंट के लिए। तो वहां पर आपको सस्ता घर मिलेगा, बहुत ही, है ना। पहले तो इनको तो फ्री में लगा है, वो एक अलग बात है, पर आप भी आओगे तो आपको भी सस्ता मिलेगा घर, बहुत ही कम में रेंट होता है। और इसके साथ साथ क्या एडवांटेज कि भाई आपको अगर है ना कहीं जाना है, बहुत ही सस्ता हुआ। वेजिटेबल सब्जियां जो चीजें होती हैं बहुत ही सस्ती होती हैं ना। और बहुत ही लोग इतने होते नहीं है यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं यहाँ पर, आप बहुत ज्यादा सेविंग कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह ही है। तो अहमद, जी जी। लास्ट में आप लोग क्या बोलना चाहोगे जो लोग हमें देख रहे हैं, जैसे कि आपकी जर्नी रही क्या पास करने का? बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि यार एग्जाम दें या नहीं दें, वीजा हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब भी वहां जाके मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारे लोग डरते रहते हैं बेसिकली, स्पेशली जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस है ना। तो हम लोग को अभी बात कर रहे हैं, तो आपको उनको लास्ट मैसेज क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि अ, डर तो होता ही है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में इस टाइम जो लोगों की कंडीशंस है, उनकी फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। यस। तो वो हर किसी के माइंड में ये चीज़ होती है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक दफ़ा टेस्ट में अगर बैठते हो, तो डेफिनेटली आप पास ज़रूर करते हो, अगर आप बैठ जाते हो। तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि आप पास ना कर सको। मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है, एग्जाम में बैठे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया आइए, जॉब भी मिलेगी यहाँ पर। कोई ऐसा अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा लोग ऐसे प्रॉब्लम में है या कुछ है। जॉब मिल जा रही है, मेन तो वीजा है, वीजा आपको मिल गया समझो, जॉब आपको मिल गई, यहाँ आके आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। और एक मंथ में तो जॉब डेफिनेटली मिल ही जाती है। बहुत सारे लोगों से हम तो बात करते रहता हूँ पर्सनली, सारे बच्चों को बेसिकली ऐसे जॉब मिल जाती है। और लाइफ में छोटा मोटा रिस्क तो हर जगह पर है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर जहां पर आप हो अपने होम कंट्री, वहीं पे कुछ रहो, 10-15 हजार जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं ना, फिर कंप्लेन मत करो कि फार्मेसी इज नॉट ए गुड कोर्स, राइट। अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, जहां भी आपका ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए कुछ तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। और आपको डेफिनेटली लेना भी चाहिए अगर आपको आगे लाइफ में बढ़ना है तो। लास्ट में हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि नो रिस्क नो गेन, तो आप लोग आगे बढ़ें और रिस्क तो लें। रिस्क बेसिकली कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया आने में बहुत ही ईजी है यहाँ पे आने में। और जैसे कि अहमद के हमने जर्नी में आप जाना, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो अहमद से हम लोग फिर से कन्वर्सेशन करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अहमद फॉर योर टाइम। थैंक यू बाय।